Okay, today we will continue with the problems that were remaining in our topic, impulse momentum. Let us read question number 8 now. You can see the figure. One mass is of 2 kg, another mass is of 3 kg, and in between there is a spring. And although the mass of the spring is not given in the problem, if a situation like this arises, if the mass of a particular entity is not given and it is not discussed in the problem, then you can consider it to be massless. So this system actually comprises of the spring and the two masses, and it is also given that the surface is smooth on a smooth horizontal plane. That means there is no friction. When the masses start sliding in any direction, there is no friction. Okay. Now, in such a condition, it is said that initially the spring was compressed by 20 centimeters. So let us say that before coming to the first configuration, the masses were sitting at a certain distance and the spring was uncompressed. It was neither stretched nor compressed. Then the system was compressed like this. You brought both the masses close to each other so that the spring gets compressed, and the total compression of the spring is 20 centimeters. So that means if this is the initial position considered and this is the final length of the spring, this is the initial length of the spring L, and this is the final length of the spring LF and Li. So what is this 20? This 20 is Li minus Lf. Okay. What will be the velocity of each block when the spring is at its normal length again? That means it is once again not said that after the compression of the spring, the masses were suddenly released from their position. Now, as soon as you release a compressed system, it will try to push both the masses outwards, and both the masses will try to move away from the center, and they are asking you the velocity of the system when it again comes to this initial configuration where the spring is not stretched at all. Okay, and the spring constant is given as 500 Newton per meter. So let us draw the figure of the system. Let us say this is M1, this is M2, and this is the compressed situation that we are drawing. And in the compressed situation, the forces that are acting on both the masses will be outwards. Let us say we don't know what the forces are, and we need not even bother about them, because the question is not asking you to calculate the forces. But why are we drawing the forces if the forces are not asked? The forces are important because that gives us the direction of velocity in which the motion of the masses will be pending. That is why the direction of forces is important. Since the spring is trapped in between and it is compressed at the time of release, so we can directly interpret that the force of the spring on both the masses will be as shown in this figure. And therefore, as soon as I release these masses from this position, you will get the velocity of m1 in this direction. So let us name it as v1, and velocity of m2 in this direction, and let us name it as v2. We don't know what the velocities are. Now let us see what is being asked here. What will be the velocity of each block? So the question itself is this: what is the value of v1 and what is the value of v2? This is what they are asking. Okay. Now
Spring constant is given, and this is the situation that we are considering. K is equal to 500 Newton per meter. This is also given. Now see, this is the velocity with which they will start, and once they reach the initial position in which the spring is not stretched, that is where the velocity is required. Now tell me, what is the value of V1 and V2 when you release these masses from rest? What is Zero. V1, V2? Or rather, let us say, instead of V1 and V2, since we are talking about the initial velocity, let us not name them as V1 and V2. Let us name them as U1 and U2. What is the velocity? Tell me, anybody. Zero. Both are zero, क्योंकि रेस्ट पे थी, पकड़ के रखा था और एकदम से छोड़ा गया है, तो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है. सो U1 and U2 आर बोथ जीरो. एंड नाउ after traveling in the opposite directions, there will come a moment when it comes back to this position as shown in the figure. इस फिगर में अभी ये स्प्रिंग ना तो खिंची हुई है ना दबी हुई है. तो जब आप इसको कंप्रेस्ड पोजीशन से छोड़ोगे तो ये दोनों मासेस दूर जाते हुए वापस से एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इस पोजीशन पे वापस से रीच होगी, और एग्जैक्ट उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी पूछी गई है. So now this is the moment at which the velocity is being asked. And now you can say that when this moment comes, when k is completely at its original length, now let us give the velocities as v1 and v2. And these are the velocities that are asked of you. So now what we can say is, since the floor is not exerting any friction, so there is no external interaction. Whatever the momentum of the system initially was, it will be carried forward to the next stage. So consider this position as position number one and consider this position as position number two. That's all what you have to do. दो स्टेट ले ली, और दोनों स्टेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि सिस्टम के अंदर किसी आउटसाइड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं है. Neither energy should be leaking out of the system, nor should energy be entering the system from any third party. Now, in between, if the interacting bodies which are already originally contained in the system, if due to their own interaction some energy is lost, that will not count towards loss of momentum. ये चीज अपन ने कल भी क्लियर की थी. अगर M1 M2 आपस में टकरा रहे हैं स्प्रिंग के खींचने से और दबने से, अगर उसमें कोई हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है, ये भी आप बाद में सीखोगे कि अगर आप एक स्प्रिंग को सिर्फ खाली अगर खींचते और दबाते रहोगे तो थोड़ी देर में स्प्रिंग गर्म हो जाती है. उसका रीजन है, देयर इज अ हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन between shearing body of the material of the spring. तो अगर आप सिर्फ खाली स्प्रिंग को वैक्यूम में भी अगर आप खींचे और दबाते रहे ना 5-10 मिनट के लिए, तो उसमें भी एनर्जी लॉस तो होता ही है, लेकिन वो सब अपन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उससे आप, क्योंकि वो क्या है, वो विद इन द सिस्टम इंटरेक्शन है. देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्ड हियर. सो एनीवे, without the influence of any external interaction, you have identified two states now. In state 1, the system was simply released from rest, and in state 2, the system has reached exactly that location in which the spring has neither compression nor expansion. उस स्टेट पे आ जाता है ये. तो अब अपन इसमें कौन सा लॉ लगा सकते हैं? विच लॉ शुड आई अप्लाई हियर? आप बताओ. स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में देखो कई सारे एप्लीकेबल लॉज हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ इंपल्स मोमेंटम है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, और क्या कहते हैं, और कौन सा था, इतने सारे अपन ने सीख लिए. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है.
कम से कम 4 या 5 लॉज मैंने आपको गिना दिए। तो आपको निकालनी है वैल्यू V1 और V2 की। आप तो मुझे ये बताओ कि अभी मैं एक इक्वेशन देखो, दो वेरिएबल्स निकालने हैं ना आपको, V1 और V2, देर आर टू अननोन क्वांटिटीज, सो दैट मीन्स किसी भी तरीके से दो इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। ये जो कहानी आपके सामने दिख रही है, यू हैव टू मेक एटलीस्ट टू इक्वेशंस विच आर वैलिड फॉर दिस सिस्टम। तो अब आप मेरे को बताओ, मैंने 3-4 लॉ आपको गिना दिए, वापस से गिना देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, ये सारे गिना दिए मैंने। आप इसमें से कम एक तो ऐसा बताओ जो इस पर लग सकती है। गिव मी वन प्रिंसिपल दैट आई कैन अप्लाई। बोलो। किसी को नहीं आता क्या? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं क्या? कैन आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? भाई कोई लॉस नहीं है इसमें, देख लो, पहले ही बता दिया। फ्रिक्शन नहीं है जमीन पे, स्प्रिंग की हिस्टेरेसिस लॉस को छोड़ दो, आप कंसिडर इट एज एन आइडियल स्प्रिंग। तो दबी हुई सिस्टम थी, रिलीज करा, एक दूसरी पोजीशन पे आ गई। एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं है, ये बता दो आप तो। यस और नो? यस सर। इट इज कंजर्व्ड। यस, 100% कंजर्व्ड एनर्जी। ठीक है। तो अब देखो, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज तो आइडेंटिफाई कर ली कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया तो ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें सारी चीजें एक साथ ही लगती है। अब आपने ये भी देख लिया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाती है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लग जाता है, कुछ भी लग सकता है कहीं पे भी। तो आप ये मत मान के चलना कि एग्जाम में आपको टिपिकली ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें, जैसे अभी टॉपिक चल रहा है इंपल्स मोमेंटम का, तो इंपल्स मोमेंटम के बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही जम्बल्ड और मिक्सड अप आएंगे, रियल लाइफ सिचुएशंस में से उठा करके इसी तरीके की मिक्सड अप क्वेश्चंस डाल देंगे। आपको तो जितने लॉस सिखाए गए हैं, आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए, कौन सा लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है वो समझ में आना चाहिए बस। तो ये साफ सी बात है, देखो सिंपल है कि इस पूरे सिनारियो में कहीं पर भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। स्प्रिंग आइडियल है, स्प्रिंग मासलेस है, मान लो नहीं दिया है तो, क्योंकि अगर कोई लॉस हो रही होती तो वो उस लॉस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देते क्वेश्चन में, अगर नहीं दिए तो मान लो कि नहीं है, और सरफेस को स्मूथ बता दिया तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है। तो एक चीज तो सिंपल है, बिल्कुल सच्चाई आपके सामने खड़ी है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो शर्तिया रूप से लगेगी इसमें। मोमेंटम मोमेंटम की तो बात आप बाद में कर लेना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब कैसे लगेगी इसको देखते हैं। स्टेट 1 पे चलें। स्टेट 1 को देखो, लुक एट स्टेट 1। स्टेट 1 में एक सरफेस पे दोनों मासेस बैठी है, तो क्या, अगर मैं सरफेस को ही डेटम मान लूं जिसपे की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो अब इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं इनिशियल स्टेट में। ठीक है। स्टेट 1 में दोनों मासेस को पकड़ के रखा है, U1 भी 0 है, U2 भी 0 है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है इसमें। अब कौन सी एनर्जी रह गई इसमें? Potential energy due to spring. विच एनर्जी शुड आई कंसिडर इन दिस? Potential energy due to spring. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Spring due to spring. स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ करके स्टेट 1 में कोई एनर्जी है ही नहीं। सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम in state number 1 will be found equal to total energy of the system in state number 2.
ये कहती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब टोटल एनर्जी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? टोटल एनर्जी में एक तो काइनेटिक एनर्जी आती है, फिर एक पोटेंशियल एनर्जी आती है। और पोटेंशियल एनर्जी के भी दो टुकड़े कर सकते हो, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। बस इतना ही सिखाया है आपको। ये तीन कंपोनेंट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कुछ केसेस में काइनेटिक एनर्जी के भी दो भाग हो जाते हैं, ये भी अपन प्रॉब्लम कर चुके हैं। एक तो होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक तो होता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ये कब आती है? जैसे कि अगर किसी सरफेस पे कोई डिस्क अगर रोल करती हुई आगे को चल रही है, रोलिंग मोशन से बिना स्लिप हुए अगर कोई डिस्क या सिलेंडर आगे को चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के भी दो भाग हो जाते हैं। एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन बाय हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये दोनों ऐड होकर के टोटल काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो ये मान लेना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी लगेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के चार कंपोनेंट आएंगे, उसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी लीनियर, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बस, इसके अलावा आपके सिलेबस में और कोई एनर्जी नहीं है। अपन केमिकल एनर्जी से डील नहीं कर रहे, अपन हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोडायनामिक एनर्जी से डील नहीं कर रहे, अपन किसी भी प्रकार की अ, दूसरी जो भी एनर्जीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, किसी भी चीज से डील नहीं कर रहे। एटॉमिक एनर्जी, एनर्जी के तो बहुत सारे हैं, अपन आप एनर्जी की बात करें तो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत है। बट इन मैकेनिक्स, when you talk about energy, you are dealing with only these four kinds of energy. And of course, energy can be reduced or increased by doing work, force into distance. ये जो वर्क बन जाता है ये एनर्जी को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो अब इसमें आपके कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो F0 हो गया, तो वर्क का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपकी टोटल एनर्जी का जो सिनारियो है दैट इज ओनली काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब इसमें रोटेशन तो हो ही नहीं रहा किसी चीज का, हटा दो। काइनेटिक एनर्जी लीनियर, यस ऑब्वियसली योर ऑब्जेक्ट्स आर स्लाइडिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, स्टेट नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है, उसको तो ले लो। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल आएगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ एक ही बेंच पे फिसल रहे हैं। अगर ये आगे पीछे मूव करते भी हैं तो इनकी हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन भी पिक्चर से चली गई। तो अब आपको स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में दो ही प्रकार की एनर्जी देखनी है कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इस डिस्कशन को समझने के बाद अपन वापस से अपनी प्रॉब्लम पे चलें। अब अपने को एनर्जी के कंपोनेंट्स बनाना आसान है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट 1, जैसा अपन ने देखा, नो ग्रेविटेशन, नो काइनेटिक, ओनली स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स is the amount by which the spring has been compressed or extended. क्या ये x की इंफॉर्मेशन आपके प्रॉब्लम में दी है? लुक एट द प्रॉब्लम एंड टेल मी। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। क्या मैं x को 20 ले लूं? एग्जैक्ट वैल्यू बता दो आप। 0.2 मीटर। 0.2 मीटर लेना है, वेरी गुड। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड ऑलवेज वर्क विथ द SI यूनिट, क्योंकि k की देखो वैल्यू क्या है, 50 न्यूटन पर मीटर। तो आप k को 20 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी पूरी की पूरी प्रॉब्लम गई पानी में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ही कर लो कि कोई भी चीज उठाओगे तो पहले चेक करो SI यूनिट में है कि नहीं। सो योर x इज 0.2 मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, k की वैल्यू 500 है और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस is your total energy of system in state number 1. Now you put it equal to total energy of system in state number 2. स्टेट नंबर 2 में देखो स्प्रिंग बिल्कुल अभी खिंची भी नहीं है। स्प्रिंग, ये मत सोचना कि अब स्प्रिंग खिंच गई है,
इसमें क्या लिखा है प्रॉब्लम में, द लेंथ ऑफ, सॉरी, what will be the velocity of each block when the spring is at again its normal length. नॉर्मल लेंथ का मतलब ये वापस जाते टाइम उस पोजीशन पे आ गई जिसमें ये स्प्रिंग ना तो खिंची हुई है ना दबी हुई है। तो अब स्टेट नंबर 2 में आपकी, ये स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 2 में स्प्रिंग एनर्जी कितनी है आपकी? 0. इट इज जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जीरो। लीनियर काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? वेलोसिटीज के डायरेक्शन दोनों उल्टे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2 को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन स्टेट नंबर 2 मिल जाएगी। टेल मी द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन सोच के बता दो। Half m1 v1 square plus half m2 v2 square. एज सिंपल एज दैट, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, बस ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया? 250। तो द फर्स्ट इक्वेशन दैट आई गेट इज 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 का स्क्वायर, दिस इज अ नोन क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको b1 और b2 निकालनी है। तो जैसा मैंने कहा, पहले से ही अपन प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि भाई अगर दो अननोन क्वांटिटीज निकालनी है तो दो इक्वेशन तो कहीं ना कहीं से बनानी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बना ली। अब इस इक्वेशन से जैसा आप देख सकते हो v1 और v2 दोनों बैठे हैं इसमें, यू कैनॉट फाइंड बोथ v1 एंड v2 फ्रॉम दिस सिंगल इक्वेशन। सो दैट मीन्स यू हैव टू गो बैक टू योर टू स्टेट्स, स्टेट नंबर 1 और स्टेट नंबर 2। अब इन दोनों के बीच में आपको कोई और एक प्रिंसिपल ढूंढना पड़ेगा जो एप्लीकेबल है। वापस से मैं लिस्ट गिना देता हूं, आप थोड़ा सोच के बताना कि कौन सा लगाएं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब नहीं गिनाऊंगा क्योंकि वो हो चुका है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। बताओ, तीन चार तो जो मेरे को अभी एकदम से याद आया वो मैंने गिना दिया आपको। इनमें से कोई एक तो लगाओ। सबसे सिंपल कौन सा है? सबसे सिंपल कौन सा है? Conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो जितना आपको समझाया है, इवन अगर सिस्टम में कोई एनर्जी लॉस भी हो रही हो तो भी लग जाता है वो तो उस सबसे ज्यादा आसान तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। यू शुड ऑलवेज, इवन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सोचना चाहिए था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो शर्तीय रूप से लगेगी यहां पे। इसमें कोई थर्ड पार्टी का इंटरेक्शन नहीं है। दो मास और स्प्रिंग की बात हो रही है और स्प्रिंग का मास भी नहीं। ठीक है? तो सिस्टम की इनिशियल स्टेज में जो मोमेंटम थी, सिस्टम के आखिरी स्टेज या सेकंड स्टेज में भी वही मोमेंटम मिलेगी। और ये लगाना बहुत आसान है। अब ये मेरे को बताओ, m1 m2 दो मासेस हैं, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज हैं, m1 m2 दो मासेस हैं, v1 v2 फाइनल वेलोसिटीज है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट ये है कि नहीं, आप बता दो। इफ द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, p किस लिए लिख रहा हूं? क्योंकि लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि रोटेशन नहीं हो रही है। ठीक है? द linear momentum of system in stage 1 must be equal to linear momentum of system in stage 2। ये बात पता है? सिस्टम की टोटल मोमेंटम फर्स्ट स्टेज में कितनी है? उसमें दो मासेस हैं और स्प्रिंग भी है, लेकिन स्प्रिंग का मास नहीं है तो इसलिए वो m में काउंट होगा ही नहीं। सो कैन आई से द टोटल momentum of the system at stage 1 is m1 u1 plus m2 u2। ठीक है? और सिस्टम की सेकेंड स्टेज की जो मोमेंटम है
अब देखो ये ध्यान से देखना, v1 का डायरेक्शन पीछे को है, v2 का डायरेक्शन आगे को है, ठीक है। तो अब आपको, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं हो रहा एनर्जी की तरह, तो इसलिए अब आपको साइन को लेकर के प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। सो वन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज टू बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, द अदर वन ऑटोमेटिकली बिकम्स नेगेटिव। आप बाय डिफॉल्ट राइट साइड को ही आप पॉजिटिव मानने की आदत रखते हैं, तो लेट अस ट्रीट द राइट हैंड साइड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो जो मोमेंटम m2 का है, m2v2, वो तो पॉजिटिव मोमेंटम हो गई, और मोमेंटम m1 का है जो m1v1, वो हो गई नेगेटिव मोमेंटम, ठीक है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, अच्छा यहां पर मैंने m1u1 और m2u2 को प्लस में क्यों लिख दिया, वो इस कॉन्फिडेंस से लिखा कि मुझे पता है u1 और u2 दोनों जीरो है, ठीक है। हालांकि प्रॉपर तरीका तो ये होता कि मैं u1 और u2 को भी देखता, u1 का भी मैंने डायरेक्शन पीछे बना रखा है और u2 का आगे बना रखा है, तो कायदे से तो मुझे ये करना चाहिए था, -m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू -m1v1 प्लस m2u2, सॉरी m2v2। दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय टेकिंग द प्रॉपर साइन, ठीक है। साइन की बात अपने काइनेटिक एनर्जी में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में अपन ने कभी दिशा के बारे में सोचना ही नहीं है काइनेटिक एनर्जी बनाते टाइम, क्योंकि v का स्क्वायर है, कहीं पे भी ले लो, प्लस ले लो माइनस ले लो, एनर्जी तो पॉजिटिव ही आएगी। बट मोमेंटम इज सेंसिटिव टू डायरेक्शन, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई क्या, कि मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को याद कैसे किया हुआ है, m1u1 प्लस m2u2 must be equal to m1v1 plus m2v2, but by taking the proper sign in our system, we know that I have to put a minus sign on m1u1 and a minus sign on m1v1। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेट में u1 और v1 जो हैं ये पीछे की दिशा में लगे हैं, और अपन ने आगे की दिशा को पॉजिटिव मान लिया है। ये मानने की बात है। अगर कोई ये जिद करे कि भाई मैं इसी को क्यों पॉजिटिव मानूं, क्या मैं पीछे की डायरेक्शन को पॉजिटिव नहीं मान सकता क्या? द आंसर इज गो अहेड एंड डू इट, यू कैन इजिली टेक दैट ऑल्सो पॉजिटिव, लेकिन एक दिशा को पॉजिटिव डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, इवन इन योर क्वेश्चन पेपर। आंसर बुक में आपको कम से कम एक एरो डाल करके ये पॉजिटिव लिख करके तो दिखाना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन पे नेगेटिव लगा रहे हो आप, ठीक है। सो नाउ this is your equation. Since u1 and u2 are both 0, your equation simply boils down to this. The whole left side becomes 0, equal to minus m1v1 plus m2v2, या फिर कहें m2v2 equal to m1v1. This is your second equation, both of them containing v1 and v2। ये क्लियर हो गया क्या, कैसे किया है अपन ने? कंफ्यूज तो नहीं हो गए सब लोग? No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. तो पहली इक्वेशन ये रही, इसको अब आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। ये Yes, दो sir. इक्वेशन आपको मिल गई है, m2v2 इक्वल टू m1v1। पहली इक्वेशन ये रही, इन दोनों को साइमल्टेनियसली अब सॉल्व किया जा सकता है, एंड यू कैन फाइंड बोथ द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2। अब ये देखो, इसका आंसर है 2.45 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट फॉर 2 kg, यानी कि इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड को है। तो ये v1 थी आपकी, v1 लेफ्ट साइड को है, कैसे पता लगेगा? आपके v1 का जो आंसर आएगा वो 2.45 नहीं आएगा, -2.45 आएगा। तो माइनस साइन लग गई है आपके आंसर में, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि वो लेफ्ट की तरफ की वेलोसिटी है, तो ऐसे डिक्लेयर कर दिया। और v2 की जो आंसर आपके आएगी जब आप सॉल्व कर लोगे, तो वो पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव वेलोसिटी मिली है, तो इसका मतलब है कि आपने जो कंसिडर किया था डायरेक्शन पॉजिटिव, उस दिशा में है, तो इसीलिए टुवर्ड्स राइट हो गया। द वैल्यूज आर 2.45 एंड 1.633। प्लीज कैलकुलेट एंड चेक ऑन योर ओन, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है,
और इसमें भी आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड एट 2 blocks रेस्टिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है, वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5। सरफेस पे फ्रिक्शन है, ये दोनों इनिशियली चुपचाप बैठे हुए थे, एक 10 किलो का है, एक 8 किलो का है। इनके आपस की दूरी अपन को नहीं दे रखी है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अ बुलेट इज फायर्ड, द बुलेट हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम्स, ठीक है, with an initial velocity u which is unknown. Now what happens is the bullet passes through the 10 kg block. बुलेट 10 kg ब्लॉक से टकराई और पूरी अंदर से पार हो गई, और उसके बाद हवा में जाकर के फिर 8 kg से टकराई और 8 kg वाले को पार नहीं कर पाई, उसके अंदर धस गई, ठीक है, एंड lodges in an 8 kg block. Now both the blocks will slide the distances as shown in figure. यानी कि बुलेट 10 kg वाले ब्लॉक्स के पार तो निकल गई, लेकिन उसने थोड़ा मोमेंटम उसको दिया, तो उस मोमेंटम के चलते 10 kg वाला ब्लॉक जहां बैठा था वहां से कितना फिसल के आगे गया, 1 मीटर आगे फिसल के जाकर के रुक गया। नाउ इट हैज स्टॉप्ड हियर। नाउ आफ्टर exiting the 10 kg block, द बुलेट हैज लॉज्ड इन द 8 kg ब्लॉक, इसके अंदर धस गई और ये दोनों मिलकर के कितना आगे गए, 2 मीटर आगे जाकर के रुक गए। दिस इज द एंटायर स्टोरी, ठीक है। आपको कहानी पूरी समझ में आ गई क्या, कैसे ये बुलेट और ये दोनों ब्लॉक्स की जो बात कही गई है। मैं वापस से एक बार दोहरा देता हूं। बुलेट वॉज फायर्ड, इट स्ट्रक द 10 kg ब्लॉक एंड एग्जिटेड थ्रू इट, but in doing so it gave it some momentum and it started from here. The 10 kg block started from here and came to a distance of 1 meter and then stopped, यहां पे आके रुक गई। 8 kg वाली ब्लॉक के ऊपर अब निकली भी बुलेट गई और इस पे धस गई, और धसने के बाद 8 kg और बुलेट दोनों कंबाइंड मास 2 मीटर तक खिसक करके आगे आ गए। ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। सो फाइनल पोजीशन इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। इस पे वेलोसिटी 0 है, ये ध्यान देना। इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो, सॉरी, इनिशियल पोजीशन इज ऑल्सो अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। यहां पर भी रेस्ट है और ये फाइनल पोजीशन भी रेस्ट है, इसके बीच में मोशन हुआ है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द बुलेट। चलो देखते हैं अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या कहेंगे, इसका एक डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। लेट अस मेक अ डायग्राम लाइक दिस। स्टेजेस बनाने अपने को। m is coming at a velocity of u, then there is a floor, 10 kg ब्लॉक है, इसको मैं कैपिटल M1 लिख देता हूं। फिर 8 kg ब्लॉक है, आई विल राइट इट एज कैपिटल M2, ठीक है। बोथ आर एट रेस्ट but the bullet is traveling at a velocity of u. Let us call this as stage number 1, ठीक है। अब आती है स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 में क्या हुआ, bullet has exited the m1 mass and thereby delivering it some momentum, instantaneous momentum इसको दे दी, ठीक है। तो अब जो है, पहले तो m1 रेस्ट में था और अब m2 को कुछ वेलोसिटी मिल गई v1 और ये जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हुआ है। फिर बुलेट जाकर के m2 के अंदर बैठ चुकी है, तो द मास इज m प्लस m2 और इसको भी एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई v2। अभी ये m1 और m प्लस m2 दोनों मासेस। नाउ लेट अस कॉल दिस एज स्टेज नंबर 2। ये दोनों जस्ट चलना चालू हुई है, अभी इन्होंने फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। दिस इज स्टेज नंबर 2। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप उस
स्थिति में नहीं लगा सकते जहां पर फ्रिक्शन ने सिस्टम में इंटरफेरेंस कर दिया हो। यू कैनॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देयर। आप वहां पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल लगा सकते हैं, बट यू कैनॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस सिचुएशन में लगती है कि आपका जो सिस्टम है वो तीन मासेस से कंसिडर कर रहे हैं अपन, M1, M2 और स्मॉल m, और इन तीनों के इंटरेक्शन में जो आपस का लॉस है उसको तो अपन नजरअंदाज कर सकते हैं इंपल्स सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। लेकिन अगर जमीन उसमें से फ्रिक्शन की एनर्जी खाने लग जाए तो उसमें मोमेंटम का लॉस मानते हैं अपन, और उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगेगी। तो इसीलिए अपन ने एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाया, स्टेज नंबर 2। प्रॉब्लम बनाने वालों ने तो दो ही स्टेज दिए, ये रही इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। लेकिन अपन को क्या प्रॉब्लम है इन दो पोजीशन से? भाई इसी पे मैं फर्स्ट स्टेज इसको मान लूं और सेकंड स्टेज इसको मान लूं, क्या ये सॉल्व नहीं हो सकती क्या? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगेगी, बस इतनी सी बात है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच में इन दोनों मासेस को घिस के जाना पड़ा आगे, और घिसने के दौरान जमीन ने आपके मासेस से इंटरैक्ट किया। सो जमीन और द फ्लोर इज द थर्ड पार्टी विच इज इन्फ्लुएंसिंग योर सिस्टम, एंड देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट एप्लीकेबल। तो अपन इसको स्टेज 1 और स्टेज 2 ना मान करके एक बीच की एक स्टेज और लाते हैं जिसमें कि फ्रिक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है और मासेस को कुछ वेलोसिटी इनिशियल मिल चुकी है। दैट इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग हियर, ठीक है। तो ये स्टेज 2 अपन ने क्रिएट करी, और स्टेज 3 जो है वो प्रॉब्लम में दी हुई स्टेज को अपन फाइनल स्टेज को 3 मान लेते हैं, ठीक है। सो स्टेज 3 इज अ सिचुएशन लाइक दिस। लेट अस से कि ये जो पोजीशन है यहां से 10 kg मास चला और ये फाइनल कहां तक आया, ये M1 है, ये 1 मीटर दूर तक चला अपनी पोजीशन से। इससे थोड़ा सा आगे 8 किलोग्राम वाली मास थी, और बुलेट के धंसने के बाद ये कितने आ गया भाई? लेट अस से दिस इज M प्लस M2। This has come a distance of 2 meters. This is stage number 3, और स्टेज नंबर 3 के एंड में इन दोनों की वेलोसिटी 0 है। तो ये देखिए स्टेज नंबर 2 में इनकी वेलोसिटी v1 और v2 है, स्टेज नंबर 3 में इनकी वेलोसिटी 0 है, स्टेज नंबर 1 में इनकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब अपन इन तीन स्टेजेस को लेते हुए ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से स्टेज के कंपैरिजन में अपन कौन कौन से नियम लगा सकते हैं, ठीक है। निकालना क्या है? आपको सिंपली यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको किस किस चीज से कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 के बीच में कैन आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और नॉट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकती है या नहीं, ये बता दो आप। देखो स्टेज नंबर 2 क्या है? M1 मास में से गोली निकली और M1 को V1 वेलोसिटी मिल गई, और वो V1 वेलोसिटी से जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी फ्रिक्शन उस पर लगा भी नहीं है, ये और सर लग उसी टाइम सकता है। गोली M2 मास में धस गई और उनके कंबाइंड मास को V2 वेलोसिटी हासिल हो गई है। इट हैज जस्ट स्टार्टेड टू मूव, बट इट ऑल्सो हैज नॉट स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस द फ्रिक्शन। बस अब एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड बाद की अगर आप बात करोगे तो इन दोनों पे फ्रिक्शन चालू हो चुका होगा। तो अभी मेरा ये कहना है कि फर्स्ट वाली स्टेज और सेकंड वाली स्टेज पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं कि नहीं? यस और नो बता दो। Yes, sir. यस वी सर। कैन अप्लाई, वी कैन अप्लाई, ठीक है। सो आई विल राइट momentum of the system at stage 1 can be put equal to momentum of the system at stage 2, ठीक है। अब आप मेरे को जल्दी से बताओ व्हाट इज मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इन स्टेज 1? सारे वेरिएबल आपके आंखों के सामने हैं, जल्दी से इक्वेशन बताओ। MU.
सीधे सीधे m इंटू यू लिख दूं क्या मैं, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन sir. स्टेज 1 को, क्योंकि m Yes, sir. कैपिटल M1 और कैपिटल M2 की वेलोसिटी जीरो है, तो उन दोनों के कारण तो मोमेंटम बन ही नहीं रहा। और इन तीनों मासेस का जो टोटल सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही मास है जो चल रहा है अभी, और वो है बुलेट। तो उसकी मोमेंटम हो गई m इंटू यू। तो पूरे सिस्टम की फर्स्ट स्टेज में मोमेंटम सिर्फ उतनी सी है, m इंटू यू। ओके, डन। नाउ टेल मी what is the correct expression for total momentum of system in stage 2? M1 V1 plus M plus M2 V2. सही है क्या Sir, जो M1 मैंने लिखा V1. है? करेक्ट? M1 V सॉरी सॉरी, अब सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या इस एक इक्वेशन से मैं u की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? मुझे u मिल जाएगी इस इक्वेशन से? देखो, कैपिटल M1 कैपिटल M2 स्मॉल m पता है मुझे, V1 V2 पता है क्या? No, sir. V1 V2 तो आपके प्रॉब्लम में ही नहीं है, आपने बनाई है ये स्टेज। तो वी हैव क्रिएटेड स्टेज नंबर 2 सो दैट वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा पाए इसीलिए अपन ने स्टेज 2 क्रिएट किए। प्रॉब्लम में तो स्टेज 2 है ही नहीं, प्रॉब्लम में सीधे स्टेज 1 के बाद स्टेज 3 दे रखी है। तो कोई बात नहीं, अब अपन को कुछ ऐसा जुगाड़ करना है जिससे कि V1 V2 मिल जाए, और अगर वो मिल जाए तो फिर u इस इक्वेशन से मिल जाएगी। सो लेट अस सेव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। इसको सेव कर लेते हैं, किसी तरीके से अब अपन को V1 V2 पता करनी, ठीक है? अब चलो, हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए गेस करना कि किस तरीके से, विच इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू गेट टू द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2, बट आई वुड लाइक यू टू मेक अ गेस। क्या लगाएं? मैं आपको कोई वापस से कुछ हिंट देता हूं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लगाने के लिए, ठीक है? देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन ट्राई, बट until and unless you practice a lot of problems you won't get the gist of this। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, मैं पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकता हूँ, पूरे सिस्टम पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ, पूरे सिस्टम पे इंपल्स मोमेंटम लगा सकता हूँ। I also have the option to apply all these laws individually on M1 and M2 separately also। मेरे कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकता हूं। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास यह है कि मैं M1 को अकेला एक मास मानते हुए उस पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकता हूं, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल लगा सकता हूं। तो अब सबसे एफिशिएंट वे कौन सा होगा? मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मेरे को V1 और V2 की वैल्यूज को पता करना है। अगर मैं पूरे सिस्टम के ऊपर लगाता हूं तो मुझे ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें V1 और V2 दोनों मिलेंगे मुझे। लेकिन अगर मैं अकेले M1 पे एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं तो मेरे को एक ऐसी इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबली मिलेगी जिसमें अकेला V1 बैठा हो अननोन के तौर पे और कोई वेरिएबल नहीं हो। तो एक इक्वेशन से सीधे मेरे को V1 मिल जाएगी। फिर वही काम मैं अगर अकेले M प्लस M2 वाले सिस्टम पे लगाता हूं तो उस पे मेरे को V2 अकेला वेरिएबल मिल जाएगा, उसमें V1 और V2 का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो लेट मी शो यू व्हाट आई एम सेइंग टू यू वर्बली हियर। जो मैं वर्बली कह रहा था वो मैं एक बार करके दिखाता हूं कि क्यों पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी लगाने की बजाय इंडिविजुअल मासेस को लेके वर्क एनर्जी लगाना ज्यादा बेहतर और आसान काम है, ठीक है? सो अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ऑन M1, ठीक है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहती है?
सिस्टम में मतलब आपका सिस्टम हो चाहे मास हो, आपने अभी एक मास लिया है, तो आपको ये पता करना है कि M1 पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है या कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। इन सारे फोर्सेस की कितनी डिस्टेंस तक ट्रैवलिंग हो रही है, इन सबको पता करके ऐड कर लो। ये हो गया आपके मास पे बाहर से किया गया वर्क। यानी कि कुल मिलाकर के ये पूछा जा रहा है कि आपके M1 पे कितना वर्क हो रहा है, वो पता कर लो और उसको रख दो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास। दिस इज योर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब देखें इसको कैसे लगा सकते हैं। M1 का स्टेज नंबर 2 ले लो। V1 उसकी वेलोसिटी है, वो आगे को चलने जा रहा है। ठीक है, स्टेज नंबर 3 पे आ जाओ। स्टेज नंबर 3 पे आपने देखा कि ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन से यहां से कितनी दूर तक चला, 1 मीटर तक चला। ठीक है, what is the force acting on M1 in the duration of its travel from this location to this location? इन दो लोकेशंस के बीच पे M1 पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है क्या? M1 है, ये ट्रैवल करके पूरी 1 मीटर आगे जाकर के रुक गई। कौन सी फोर्स इस पे कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही थी? कैन एनीबडी टेल मी? और M1 वो वाली मास है जिसमें से गोली पार हो गई। ठीक है, मतलब धक्का देकर के गोली तो अंदर से पार होके निकल गई। अब M1 तो बस चल रही है, लेकिन अब उस पर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्या फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स। आई एम सॉरी, मेरे मेरे स्पीकर्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप जो बोल रहे हो वो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। ग्रेविटी। ग्रेविटी तो देखो कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही है, लेकिन जिस दिशा में ट्रैवल हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है ग्रेविटी। और अगर फोर्स और डायरेक्शन और ट्रैवल ये आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका वर्क जीरो होता है, ये आपको पता ही है। सर फ्रिक्शन देन। यस, द ओनली सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन M1 इज फ्रिक्शन। तो अब आपको क्या करना है, ये है इसकी फोर्स विच इज इक्वल टू म्यू इंटू R1। R1 क्या चीज है? R1 अगर नीचे को M1G इसकी वेट एक्ट कर रही है, देन R1 इक्वल टू M1G। And the force that is continuously acting on M1 while it travels from this location to a distance of 1 meter is only mu R1 या फिर फोर्स। तो आपका ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में वर्क डन वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? म्यू R1 हो गया। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस इक्वेशन। वर्क डन इधर ले आते हैं, म्यू इंटू R1 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके M1 की, यानी कि 1 मीटर ट्रेवल करके इधर आ गया है, अब इस लोकेशन पे ये आकर के रुक गया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? कितना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट दिस लोकेशन? इट इज जीरो। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कहना है आपका? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब यहां से जब ये स्टार्ट हुई है सेकेंड स्टेज से, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? M1 V1 हाफ M1 V1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू क्या है? M1G है। इस इक्वेशन को सेट कर लेते हैं, म्यू इंटू R1 दैट मीन्स म्यू इंटू M1 इंटू G इक्वल टू 0 माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर, यानी कि माइनस हाफ
m1 v1 स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज और है, ये फोर्स की डायरेक्शन किधर को है, पीछे को है कि फॉरवर्ड है? फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड को चल रही है या लेफ्ट साइड को चल रही है? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को। एंड सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, व्हेन यू यूज इट इन द इक्वेशन यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज अ नेगेटिव वर्क, या फिर ये कह लो कि ये इसकी एनर्जी को खा रहा है। So you have to put a negative sign. And now you can cancel out the negative sign on both sides, cancel out m1 on both sides, and easily you get the value of v1 as 2 mu g under root। मिल गया आपको v1 की वैल्यू? ठीक है। अब अपन को v2 पता करनी है इसी तरीके से। So what we can do is apply work energy principle on the block which has mass m plus m2 in stage 2। तो स्टेज 2 में आपकी बुलेट ब्लॉक 2 में धस गई है और उसकी वेलोसिटी v2 हो चुकी है, और वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन यानी कि यहां से 2 मीटर ट्रेवल करके जाकर के फिर रुक जाती है। इसकी इक्वेशन अब आप खुद बनाओ। फोर्स कितनी लग रही है इस पे? वही फ्रिक्शन लग रही है इस पे फोर्स भी। ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू r2। So force is equal to minus mu into r2, and there is no other force in the direction of motion। ठीक है। So work done by force कितना हो गया? वर्क डन बाय एफ कितना हो जाएगा? अगर माइनस म्यू r2 की फोर्स इस पे लग रही है और ये 2 मीटर minus 2 चलती mu है, r2। दिस बिकम्स -2 म्यू r2, वेयर r2 इज इक्वल टू, बताइए? m plus m2 g। दिस इज r2। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू -2 म्यू r2 विल बी इक्वल टू व्हाट? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस स्टेज में? इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। 0। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल वेलोसिटी v2 है। तो इसका एक्सप्रेशन बनाओ जरा। -2 म्यू इंटू स्मॉल m प्लस m2 g, ये r2 की वैल्यू है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m प्लस m2 इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, m प्लस m2 से m प्लस m2 कैंसिल हो गया। वंस अगेन v2 इज इक्वल टू 2 म्यू g इंटू 2 अंडर। देख लो सही है क्या? यस सर। ओके। आपको v2 मिल गई है। म्यू की वैल्यू प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है।
the coefficient of kinetic friction is 0.5. So you have all the required information. सर एक बार वापस V1 बता दो सर, ये -2 म्यू R2 कैसे हुआ था वर्क डन? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? एक सेकंड, मेरे को इसको वॉल्यूम बढ़ाने दो। हाँ, वापस से बोलो। सर एक बार वापस बता दो सर, वर्क डन -2 म्यू R2 से हुआ। तो यार एक सेकंड होल्ड करो, मेरे को है ना, मेरे स्पीकर बिल्कुल खराब हो रहे हैं। मैं एक बार वो ईयरफोन लगाता हूँ। यू हैव टू रिपीट योर क्वेश्चन। हाँ, अब बोलो, अब बोलो बेटा। सर ये वापस बता दो सर, ये वर्क डन डबल कैसे हुआ था? वर्क डन डबल नहीं हुआ है। ये देखो, आपकी 2 मीटर चली है ना डिस्टेंस, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू फोर्स डिस्टेंस। इनटू डिस्टेंस है, इसीलिए 2 आया यहाँ पे। और सर माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन, फ्रिक्शन है ना, ये पीछे को है यस सर। और मोशन आपका आगे को है। सो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन दैट यू कंसिडर्ड प्रीवियसली। तो फोर्स वेक्टर है और वेक्टर पीछे को लग रहा है, तो इसलिए माइनस म्यू R2 लोगे, म्यू R2 नहीं लोगे। ठीक है? यस सर। ओके, नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस। अपन इस टॉपिक को यहीं खत्म कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास, अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट, चीज नोट करें। कल की जो क्लास होगी, कल आपको मेरे क्लास के टाइम पे दिनेश सर की क्लास को ज्वाइन करना है। गॉट इट? कल मैं क्लास नहीं ले रहा, ओके सर। और मैं आपकी जो क्लास अब नेक्स्ट लूंगा